Hello students, Resonance PCCP brings you NCERT series for the students who want to do well in their board exams. So here we'll be taking the NCERT chapters of your NCERT books. We'll go through the explanation of the chapter and we'll also see the NCERT questions which are given at the back of the chapter. Right? So today we'll be starting with the first chapter, which is from Footprints Without Feet, and the chapter's name is Triumph of Surgery. Now, before we start with the chapter's explanation, what do you mean by the term triumph? Triumph means victory. Triumph means victory. So here we are going to talk about a surgery. Was the surgery actually performed, or what happened? We'll see it in the chapter. And we are going to talk about the victory of a surgery. Now, किसके ऊपर ये सर्जरी हुई थी, किसने ये सर्जरी करी थी, सर्जरी क्यों करी गई थी, वो सब हम चैप्टर के डिटेल में देखेंगे. राइट? तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट द राइटर ऑफ द चैप्टर. ओके, the chapter is written by James Alfred Witt, and he is an English veterinary surgeon and writer. He was born on 3rd October 1916 in England. Now, James Herriot is his pen name. Now, what do you mean by pen name? Pen name is actually a name which a writer uses instead of his original name. Okay? And as he was a veterinary surgeon, he used to use his veterinary experiences in writing stories or writings about animals, right? He has written a lot of stories in which he has described the relation between an animal and his master. And James Herriot, he died on 23rd February 1995 at the age of 78. Okay, so this was about the writer of the chapter. Writer's name is James Alfred Witt, which you have read in the you have seen the name as James Herriot because it is his pen name, and the writer has used his veterinary experiences in describing the relation of an animal with his master. Right? So let's see what are we going to do in the chapter. What are we going to cover in the chapter? Okay, let's see. Now, let's talk about the introduction. Let's talk about what this chapter is all about. Okay, so this chapter is all about a rich mistress and her dog Tricky. Now, the rich mistress used to overfeed her dog, over pamper her dog. Now, due to that, her dog becomes seriously ill. Right? Her dog becomes seriously ill, and there was one more character in the chapter, which is Herriot. That's the writer of the chapter. So, this Dr. Herriot, he understands the reason behind Tricky's illness, right? He understands the reason why Tricky is so unwell, and he even warns Mrs. Pumphrey that do not overfeed your dog, otherwise the situation may get worse. But due to the over pampering, due to the love and affection that Mrs. Pumphrey has for her dog, she was reluctant to do it, right? And due to that, the situation gets worse, and Tricky was actually going into a very bad phase of his life. वो vomit कर रहा था, वो कुछ खा नहीं रहा था, and जो डॉक्टर Herriot है, वो already अपने दिमाग में define कर चुके थे कि उन्हें करना क्या है. अब he was left with only one option, which was to take Tricky away from Mrs. Pumphrey for a certain days, so that उसका जो diet है, so that उसका जो exercise है, वो अच्छे से हो सके, and Tricky जो है, he again gets transformed to a lithe and energetic animal. Okay.
Now, this was a brief like introduction of the chapter, but the same case happens with आर लाइफ ऑल्सो. हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा ओवर पैम्पर, ओवर प्रोटेक्टिव फील करते हैं, एंड ड्यू टू दैट वो अपने बच्चों की जो लाइक अनकंडीशनल या यू मे से जो बहुत ही अनरिक्वायर्ड डाइटरी हैबिट्स होते हैं उन्हें भी फुलफिल करते हैं, विच अल्टीमेटली लीड्स टू दी बैड हेल्थ एंड दी लाइक उनके बच्चों की हेल्थ जो है उससे डिटोरिएट हो जाती है, राइट? क्योंकि आजकल के बच्चे दे आर नॉट टू गुड एक्सरसाइज, दे आर नॉट टू ईटिंग गुड हैबिट्स, सो दैट इज द केस विच इज हैपनिंग इन टुडे सिनेरियो ऑल्सो, राइट? तो ये जो चैप्टर है वो अल्टीमेटली यही कहना चाहता है कि जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें अपने बच्चों के डाइटरी हैबिट्स पे एक चेक रखना चाहिए, एंड ऐसे डाइटरी हैबिट्स को इनकलकेट करना चाहिए बच्चों के अंदर जो कि उन्हें एक प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट की तरफ लेके जाए along with the good exercise. Okay, so let's read the introduction. The story tells us how a rich lady pampers her dog and makes it very lazy, right? So उस लेडी के ओवर पैम्परिंग की वजह से उसका डॉग बीमार हो जाता है, वो लेजी हो जाता है. Her overfeeding the dog makes it fat and ill. So due to the feeding जो डॉग है वो फैट हो जाता है, ब्लॉटेड सॉसेज की तरह लगने लगता है एंड बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है. He has bouts of vomiting and all. There is one more character like I told, Harriet, who is the narrator and he is a doctor. He understands what is the reason behind dogs lethargy and he treats it at his clinic. वो अपने क्लिनिक में उसे ले जाता है और वहां पे उसे ट्रीट करता है, ठीक है? And due to his treatment, what happens? The dog becomes active and lady जो है वो उसे अपने साथ वापस अपने घर ले जाती हैं, ठीक है? Now, the writer has connected this to the real scenario, real life scenario, और वो क्या कहते हैं? जो पेरेंट्स है they often pamper their kids by giving them excessive and variety of meals. Parents भी बच्चों को over pamper करते हैं by giving them excessive variety of meals, and what happens because of this? They become overweight and spoiled. बच्चे overweight हो जाते हैं, spoiled हो जाते हैं, right? Parents just try to meet every demand of the kid and fail to give them exercise of their body and mind. पेरेंट्स बच्चों के प्यार में अंधे हो जाते हैं, उन्हें ओवरफीड करते हैं, उनके हर एक डाइटरी जो उनका डिमांड होती है उसको फुलफिल करते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं होता है, एंड ड्यू टू दैट बच्चे क्या हो जाते हैं? दे बिकम ओवरवेट एंड दे बिकम स्पॉइल्ड, राइट? चलिए अब हम इसके आगे चैप्टर को देखते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या समझने वाले हैं. देखिए, हम ये जो चैप्टर है बेटा इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि अगर आपका बोर्ड में कोई क्वेश्चन आता है तो आपको अगर पॉइंट पता है कि इस पॉइंट में हमें लिखना क्या है, आपके लिए आंसर को फ्रेम करना इजी हो जाएगा, ठीक है? तो हम वही करते हैं, आपके लिए ये चैप्टर को थोड़ा इजी फॉर्म में रखा गया है सो दैट आप अच्छे से कर पाए. तो देखते हैं हम क्या करेंगे इसके अंदर. देखिए, ये पूरा चैप्टर मैंने कुछ मेन पॉइंट्स में डिवाइड किया है, ठीक है? वील बी लुकिंग आफ्टर ट्रिकीज इनलेस. ट्रिकी का जो इनलेस थी वो क्या थी, उसके पीछे के रीजंस क्या है, ट्रिकी की जो इनलेस है, व्हाट वर दी रीजंस बिहाइंड दैट. नाउ अब ट्रिकी की इनलेस तो पता है, पर डॉक्टर हेरियट ने जो उन्हें वार्निंग दिया था वो क्या था, वो हम इसके अंदर देखेंगे. उसके बाद क्योंकि वो वार्निंग फुलफिल नहीं हुई थी, वार्निंग को लाइक उस पर अटेंशन नहीं पे किया गया था, तो जो ट्रिकी है ही बिकेम इल एंड इसीलिए उसे जेम्स के क्लिनिक ले जाया जाता है. नाउ वहां पे ले जाया गया, अब उसके बाद उसका ट्रीटमेंट क्या था, अभी ट्रीटमेंट हुआ तो इम्प्रूवमेंट क्या था, एंड इम्प्रूवमेंट हुआ तो फिर ट्रिकी ऑलराइट हुआ, ही बिकेम बेटर. नाउ अब क्योंकि वो बेटर हुआ है तो ऑब्वियसली मिसेस पंफ्रे तो रुकने वाली नहीं है, वो ट्रिकी को लेने आ जाती हैं, राइट? एंड अब जो ट्रिकी का जो क्योर है वो अकॉर्डिंग टू पंफ्रे क्या था, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी था, राइट? अब हम देखेंगे कि क्या ये सच में कोई सर्जरी का रिजल्ट था या कोई और रीजन था जिसके वजह से ट्रिकी जो है ही ट्रांसफॉर्म टू अ लिथ एंड एनर्जेटिक एनिमल. ओके, सो वील बी कवरिंग द होल चैप्टर अकॉर्डिंग टू दीज पॉइंट्स, राइट? सो आपको उसी तरीके से अगर आप याद रख लेंगे तो आपके लिए आंसर फ्रेम करना इजी हो जाएगा, ठीक है? चलिए देखते हैं.
चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिकीज इलनेस। अब देखिए हुआ क्या था कि जो ट्रिकी है वो अपने मास्टर के साथ घूमने निकला हुआ था एंड जो डॉक्टर हिरियट हैं he was also there and he was shocked to see Tricky's condition. Why? क्योंकि Tricky hugely fat हो चुका था, bloated sausage की तरह लग रहा था, he has bloodshot eyes, roomy eyes थे उसके, right? तो वो बहुत ही ज्यादा surprised था when he saw Tricky. अब जब ट्रिकी को इस तरीके से देखा गया तो जो मिसेस पंफ्रे हैं वो अपने आप को प्रूव करने के लिए कि भैया वो ट्रिकी के प्यार में या ट्रिकी की कंडीशन को देख के उसको ये सब खिला रही थी, वो डॉक्टर हिरियट को ये बताती कि जो मेरा डॉग है ही वाज सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन और मुझे ऐसा लगा कि आई नीड टू बिल्ड अप हिज एनर्जी एंड बिकॉज ऑफ दैट in between the meals which I give him regularly, I used to give him some extra things like cod liver oil, malt and all. तो मैं वो उसको दे रही थी, ठीक है। ये उनका कहना था अपने डिफेंड में, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या था इसके अंदर। James Heriot, he was shocked to see Tricky's appearance on spotting him with his owner, Mrs. Pumphrey. तो as I told you, जब वो जा रहे थे उन्होंने Mrs. Pumphrey और उनके डॉग को देखा एंड जो ट्रिकी था वो बहुत ही ज्यादा फैट था, he was looking like a bloated sausage. तो वो बहुत शॉक्ड थे उसको देखकर, ठीक है। एंड ट्रिकी was looking overweight and he had bloodshot आईज, ठीक है, उसके ब्लड शॉट आईज लग रहे थे। नाउ मिसेस पंफ्रे जो है वो डॉक्टर हिरियट को बहुत अपने आप को लाइक ऐसे ना डिफेंड कर रही थी कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मेरे डॉग को इतना क्यों खिला रही हूँ। तो वो अपने आप को डिफेंड करते हुए रीजन देती हैं दैट माय डॉग वाज सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन, दिस इज व्हाट आई थॉट एंड दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड गिविंग हिम सम मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स, ठीक है। तो ये उनका तरीका था ट्रिकी को एक बेटर लाइक मैल न्यूट्रिशन से प्रोटेक्ट ओवरकम करवाने के लिए, ठीक है। ये उनका कहना था कि मेरा डॉग ना बड़ा वीक सा लग रहा था, लेथार्जिक हो चुका था एंड मुझे ऐसा लगा मे बी सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन, सो दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड गिविंग हिम सम एक्स्ट्रा फूड इन बिटवीन द रेगुलर मील्स, ओके। सो दिस वाज हर एक्सप्लेनेशन। नाउ लेट्स सी रीजंस बिहाइंड ट्रिकीज इलनेस। अब जो डॉक्टर हिरियट है उन्हें पता था that the basic reason or you may say the actual cause of Tricky's illness is his greed, ठीक है। ट्रिकी का एक ही कारण है बीमार होने का, वो है उसका greed. Why? Because Tricky has not learned to say no to any food items at any hour of the day, ठीक है। वो कभी भी दिन के किसी भी टाइम पे कोई भी चीज खाने के लिए मना नहीं करता है। This was the problem, right? तो डॉक्टर हिरियट को ऑलरेडी पता था that the only reason is that Tricky has not learned to say no to any food item, right? चलिए देखते हैं। Mrs. Pumphrey confessed that she fed Tricky some cream cakes and chocolate. अब क्योंकि डॉक्टर हिरियट लाइक ही वॉज वेरी शॉक्ड टू सी द ट्रिकीज कंडीशन, तो मिसेस पंफ्रे फिर कहती हैं कि जो मेरा डॉग है वो कुछ खा नहीं रहा था एंड मुझे ऐसा लगा मे बी वो लेथार्जिक हो चुका है, बहुत वीक होता जा रहा है, सो आई स्टार्टेड गिविंग हिम हिज फेवरेट फूड आइटम्स विच वर क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, ठीक है। देन डॉक्टर हिरियट जो हैं वो रियलाइज कर लेते हैं दैट द सिचुएशन इज वेरी बैड एंड उन्हें पता था व्हाट इज द एक्चुअल रीजन बिहाइंड ट्रिकीज इलनेस इज दैट ही हैज नॉट लर्न टू से नो टू फूड, ठीक है। वो कभी भी किसी खाने को ना नहीं बोल सकता है, यही उनका प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या हुआ। चलिए लेट्स सी। ओके, हिरियट्स वार्निंग टू मिसेस पंफ्रे। अब क्या होता है, जो मिसेस पंफ्रे हैं she was given warning by Dr. Heriot, ठीक है। उन्हें वार्निंग दे दी जाती है एंड डॉक्टर हिरियट उन्हें कहते हैं कि मैम अगर आपने इसको डाइट पे कट लाइक उसके डाइट को कट नहीं किया, उसे स्वीट्स का इंटेक बंद नहीं किया, उसे प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज नहीं दिया, तो जो सिचुएशन है वो बहुत खराब हो जाएगी, ठीक है। तो मिसेस पंफ्रे ये भी बताती हैं कि मैं उसको एक्सरसाइज देती हूँ, हाँ वो बात अलग है कि जो रिंग थ्रोइंग एक्सरसाइज है वो काफी टाइम से नहीं हो पा रही है बिकॉज मेरा जो गार्डनर है
ही इज डाउन विद लंबागो. लंबागो इज दैट मसल पेन. ठीक है, तो वो नहीं हो पा रहा है. अदरवाइज आप देख सकते हैं ट्रिकी मेरे साथ वॉक करता है, मेरे साथ घूम रहा है. ठीक है, तो जो डॉक्टर हिरियट है वो उन्हें वार्निंग देते हैं कि मैडम, इफ यू वांट योर डॉग टू बी इफ यू वांट योर डॉग टू बी हेल्दी, यू नीड टू कट शॉर्ट हिज डाइट, यू नीड टू कट शॉर्ट हिज स्वीट डाइट, एंड यू इवन नीड टू गिव हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज. ठीक है, अब डॉक्टर हिरियट जो हैं वो ऑलरेडी जानते थे कि ये सब कर पाना मिसेस पंफ्रे के लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, एंड ही वाज इवन एक्सपेक्टिंग अ कॉल विद इन अ फ्यू डेज. ठीक है, उन्हें पता था कि कुछ दिन में मेरे पास ये कॉल आने वाला है, एंड आई नीड टू बी रेडी विद आई नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, आई नीड टू बी रेडी फॉर दैट. ठीक है, चलिए देखते हैं. जेम्स gave Mrs. Pumphrey some stern advice. ठीक है, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली बोला था, मैम यू नीड टू डू दिस इन ऑर्डर टू मेक योर डॉग healthier, right? Now, Mrs. Pumphrey called a few days later. As I told you, he was expecting a call from her because उन्हें पता था कि ये जो उन्होंने बोला है ये Mrs. Pumphrey के लिए कर पाना बहुत मुश्किल है because of her over pampering attitude towards Tricky. ठीक है, तो वो जो कॉल था it came a few days later and it seemed Tricky was refusing food and was suffering from bouts of vomiting. ठीक है, तो जो मिसेस पंफ्रे हैं उन्होंने बताया उनके डॉग का कंडीशन क्या था. डॉक्टर हिरियट को बताया कि सर जो मेरा डॉग है, ही इज नॉट ईटिंग एनीथिंग, ही इज इवन रिफ्यूजिंग हिज फेवरेट फूड, ही इज नॉट गोइंग आउट फॉर अ वॉक, एंड इन बिटवीन ही हैज बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग. ठीक है, रेगुलर इंटरवल्स में उसे वॉमिट भी हो रही है, ये उन्होंने डॉक्टर हिरियट को बताया. ठीक है, नाउ जैसे कि डॉक्टर हिरियट ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा था कि उन्हें क्या करना है ट्रिकी को, कैसे वो अपने आप वापस से उसको एक प्रॉपर शेप में लेकर आने वाले हैं, उसे एक प्रॉपर गुड लाइफ देने वाले हैं. उन्होंने ऑलरेडी एक प्लान सोच के रखा था, राइट? तो क्या होता है, ही डिसाइडेड टू टेक ट्रिकी टू हिज क्लिनिक. ठीक है, वो डिसाइड करते हैं कि जो ट्रिकी है उसे मुझे अपने साथ अपने क्लिनिक में ले जाना पड़ेगा. ठीक है, तो क्या होता है, लेट्स सी. James had already made a plan by then of getting Tricky away from the house and get into its clinic to cure him. तो उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा था कि उन्हें कैसे जो ट्रिकी है उसे अपने साथ अपने क्लिनिक लेके जाना है. एंड he was very tactful in this. बहुत tactfully ना वो क्या करते हैं, जो मिसेस पंफ्रे हैं उन्हें जैसे तैसे करके कन्विंस करते हैं. एंड ही इवन डिड नॉट सरेंडर टू वेलिंग्स ऑफ मिसेस पंफ्रे. वो जो उनका रोना धोना था या जो भी उनका इमोशनल एक फीलिंग था ट्रिकी के तरफ, उसको सभी चीजों को अवॉइड करते हैं. वो डिसाइड करते हैं कि मुझे इस बार मिसेस पंफ्रे के वेलिंग्स के तरफ नहीं जाना है, मुझे उनसे अफेक्ट नहीं होना है और मुझे ट्रिकी को अपने साथ लेके जाना पड़ेगा. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, Mrs. Pumphrey almost fainted at the suggestion. So when the suggestion of taking Tricky to a clinic was put forward, जो Mrs. Pumphrey है, she almost fainted at that. ठीक है, बट जो नरेटर हैं वो बहुत फर्म थे अपने डिसीजन में कि दैट वो लेके जाएंगे, नो मैटर व्हाट हैपेंस, ही इज नॉट गोइंग टू सरेंडर टू एनी रिक्वेस्ट. ठीक है, देन grabbing hold of Tricky, James carried him down to his car. अब उन्होंने ट्रिकी को ब्लैंकेट में रैप किया and he took Tricky along with him to his car. So as soon as the decision was taken, as soon as it was finalized कि ट्रिकी जो है वो क्लिनिक में जा रहा है, हॉस्पिटल में जा रहा है, जो मिसेस पंफ्रे हैं, she actually arose the whole house. ठीक है, उनके पूरे घर को उन्होंने काम पे लगा दिया था. वाई उन्होंने जो ट्रिकी है उसके जो भी असेंशियल चीजें थी, लाइक उसका जो डे बेड है, नाइट बेड है, सीजन्स के अकॉर्डिंग जो उसके कोट्स थे या जो उसके बोल्स थे फॉर ब्रेकफास्ट और फॉर लंच फॉर डिनर, व्हाटएवर, जो भी ट्रिकी को वो अपने घर में कंफर्ट्स देती थी, लग्जरीज देती थी, उन्होंने डिसाइड किया कि वो सारी चीजें उसको हॉस्पिटल में भी प्रोवाइड करेंगी. राइट, सो शी एक्चुअली मेड द एंटायर हाउस स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट. वो सबको बोल देती है ये ले आओ वो ले आओ. एंड जो डॉक्टर हिरियट है वो सोचते हैं कि भाई मेरी कार इतना सारा तो नहीं कैरी कर पाएगी, सो ही जस्ट इग्नोर्ड ऑल दोज थिंग्स एंड ही वाज अबाउट टू लीव विद ट्रिकी. ठीक है,
तो देखते हैं. The whole household was in an uproar. The staff rushed about getting blankets, जो उसके blankets है according to seasons and all, bowls हैं जो उसके खाने के, clothes हैं, जो toys Tricky को पसंद है, all these things were gathered and were about to be packed with Tricky. ठीक है. The narrator, realizing the items would not fit in his car, quickly drove away. So obviously इतना सारा सामान उसकी गाड़ी में नहीं आ सकता था, so he decided to drove away with Tricky alone. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. Okay, Tricky's treatment. अब ट्रिकी पहुंच चुके हैं डॉक्टर हेरियट के क्लिनिक में. अब वहां पे उनका क्या ट्रीटमेंट था. ठीक है, तो पहले तो जब ट्रिकी को वहां पे ले जाया गया, he was there like a motionless object. ठीक है, तो बाकी के जो डॉग्स थे वहां पे, जब वो ट्रिकी के पास आते हैं, उसे स्निफ करते हैं, they found Tricky to be a useless object and so they ran away from there. ठीक है, अब क्या हुआ, जो ट्रिकी है उसको वहां पर कुछ टाइम के लिए he was just kept on a water diet and he was not given anything to eat, right? And उससे gradually उसके health में थोड़ा थोड़ा improvement start होता है. ठीक है, तो देखते हैं क्या हुआ. At his clinic, all the other dogs came rushing to James. Tricky, in contrast, just stared at them with dull eyes. So, like I said, वो आए थे उसके पास, उन्होंने उसको sniff किया, but because Tricky was lying there motionless, they found Tricky to be a useless object, and that is why वो वहां से चले जाते हैं. ठीक है, then for the next 2 days, Tricky was given only water and no food at all, right? तो for 2 days he was on a water diet and then he was not given any food to eat. ठीक है, at the end of the second day, Tricky started showing some interest in the surrounding. तो second day के बाद Tricky जो है वो थोड़ा बहुत surrounding में interest लेना start करता है. ठीक है, next, Tricky's improvement. Now 2 days are over. He is not given any food to eat. He was just kept on a water diet. So at the end of the second day, he started showing some interest in the surrounding. And now what happens on the third day? ठीक है, देखते हैं अपन. On the third day, the narrator led Tricky to the dogs playing in the yard. So Tricky जो है वो next day जो बाकी के dogs खेल रहे थे, he followed them. Tricky slowly followed the dogs around as they played. Later, after the dogs were fed, Tricky sniffed their bowls, licking them casually. अब उस चैप्टर में ये बताया गया है कि जो डॉग्स हैं ड्यूरिंग द फीडिंग टाइम देयर वाज अ हेडलॉन्ग रश. ठीक है, एक जो डॉग्स होते थे वो एक दूसरे को पुश करते रहते थे. दे जॉसल देयर वे. व्हाई? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जो बोल्स में खाना होता है वो जो डॉग्स हैं वो खत्म कर देते हैं. एंड देन दे हैव टू सफर फॉर द लास्ट, लाइक जो लेफ्ट ओवर्स होते हैं उनके लिए वो स्ट्रगल करते हैं. ठीक है, तो उस दिन वही हुआ. ट्रिकी क्योंकि थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट कर रहा था, ही वाज नॉट एबल टू मैच अप विद द स्पीड ऑफ द अदर डॉग्स. तो उस दिन उसका जो खाना है इट वाज जस्ट द लेफ्ट ओवर जो था उसको लिक करके ही हैड दैट फूड. ठीक है, बट लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, नेक्स्ट डे क्या होता है, एक एक्स्ट्रा बोल रखा जाता है ट्रिकी के लिए. ठीक है, एंड ट्रिकी जो है वो बाकी के डॉग्स को ज्वाइन करता है ड्यूरिंग द मील टाइम, राइट? सो दिस वाज हिज इम्प्रूवमेंट. ये ग्रेजुअली उसका इम्प्रूवमेंट था कि थर्ड डे पे he was following the other dogs in the yard and during the meal time. Earlier जो है वो सिर्फ जो leftovers है उनको लिक करता है, but next day ट्रिकी के लिए एक एक्स्ट्रा बोल ऑफ फूड रखा जाता है so that he can have his food properly. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. Okay, Tricky becomes all right. अब जो ट्रिकी का इम्प्रूवमेंट है इट वॉज वेरी रैपिड, इट वॉज वेरी क्विक. ठीक है, अब वो बहुत ज्यादा क्विक इम्प्रूवमेंट शो कर रहा था. अपने फूड के शेयर के लिए ही यूज्ड टू स्ट्रगल विद, लाइक ही यूज्ड टू फाइट विद द अदर डॉग्स. देन ड्यूरिंग द नाइट टाइम ही वुड हंट रैट्स, राइट? चलिए आगे देखते हैं. Tricky then made rapid progress. He ran around with the dogs, fighting them for food and hunting rats at night. तो वो rapid improvement show कर रहा था. बाकी के डॉग्स के साथ खाने के लिए वो लाइक एक स्ट्रगल था उसका. उसमें he would actually get his share of food. Then night time में they would hunt rats. तो वो उसमें भी उनको like he was there with them.
On hearing that, Mrs. Pumphrey started bringing around baskets of eggs. अब देखिए, जो डॉक्टर हिरियट है, he would receive call from Mrs. Pumphrey a dozen of times and she would ask him a lot of questions. ठीक है, तो वो कई सारे questions तो अपने like dodge कर जाते थे, but एक जो क्वेश्चन होता था अबाउट ट्रिकीज इंप्रूवमेंट, ट्रिकीज हेल्थ, वो उसे अवॉइड नहीं कर सकते थे. ठीक है, तो जब उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर किया कि यस आपका जो डॉग है वो थोड़ा सा रिकवर करने लगा है, सो व्हाट हैपेंड, जो मिसेस पंफ्रे हैं, शी स्टार्टेड सेंडिंग eggs for Tricky. ठीक है, then after some time she started sending wine for Tricky to enrich his blood. Then she even started sending brandy for Tricky to make up the strength and like जो ट्रिकी की जो हेल्थ है उसको और एक बेटर तरीके से इम्प्रूव करने के लिए शी स्टार्टेड सेंडिंग ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, तो हम देखते हैं इसके अंदर आगे. She started sending baskets of eggs, then she started sending wine. ठीक है, उसके बाद वो वाइन भेजना स्टार्ट करती हैं. अब वाइन आ रही है, एग्स आ रहे हैं, ट्रिकी को तो वो दे नहीं सकते हैं बिकॉज ही इज ऑन अ डाइट. सो व्हाट हैपेंड, जो डॉक्टर हिरियट और उनके जो फ्रेंड्स होते थे, दे यूज्ड टू एंजॉय इट, राइट. तो उनके लिए जो लंच है, इट बिकेम अ सेरेमनी, लाइक इट वाज लाइक अ सेरेमनी. व्हाई? बिकॉज दे वुड ईट एक्स्ट्रा एग्स ड्यूरिंग द ब्रेकफास्ट, देन दे वुड हैव वाइन ड्यूरिंग द लंच. सो इट वाज बिकमिंग अ ग्रेट मील फॉर देम. ठीक है, फाइनली शी स्टार्टेड सेंडिंग अ बॉटल ऑफ ब्रांडी फॉर ट्रिकी. एंड जेम्स और उनके जो पार्टनर है, दे यूज टू एंजॉय ब्रांडी ड्यूरिंग द डिनर टाइम. ठीक है, इसीलिए जो ये पूरा प्रोसेस था उनके लिए एक सेरेमनी की तरह था, बिकॉज दे वुड गेट एक्स्ट्रा एग्स ड्यूरिंग देयर ब्रेकफास्ट, देन ड्यूरिंग द लंच दे वुड हैव वाइन एंड ड्यूरिंग द डिनर दे वुड टेक ब्रांडी. सो दिस वाज अ ग्रेट फीस्ट फॉर देम. एंड यही एक रीजन है कि जो डॉक्टर हिरियट है, he was actually like he thought that ट्रिकी को रखना हमारे लिए एक टेम्पटेशन है, राइट, क्योंकि ट्रिकी के नाम पे उन्हें भी बहुत अच्छा अच्छा खाने पीने को मिल रहा था. ठीक है, सो जेम्स वॉज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी परमानेंटली इफ ओनली फॉर द फाइन स्पिरिट्स एंड दी एग्स. तो वो जो एग्स हैं और वो जो भी एडवांटेज उनको ट्रिकी के नाम पर मिल रहे थे, इट वॉज लाइक अ टेम्पटेशन फॉर देम टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट. ठीक है, बट he knew that Mrs. Pumphrey was suffering, but it was very thoughtful of Dr. Hiriot that उन्हें पता था कि वो कर तो ऐसा सकते हैं, but उन्हें ये भी पता था जो मिसेस पंफ्रे हैं, she is actually suffering, है ना, वो अपने डॉग को बहुत मिस करती हैं. That is why he didn't he was not like he didn't actually go with the thought of keeping Tricky as a permanent guest. ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं क्या हुआ इसके अंदर. Okay. Next, Mrs. Pumphrey comes to take Tricky home. Ab, as soon as Mrs. Pumphrey, she got the message that उनका जो ट्रिकी है वो बहुत बहुत बेटर है. एंड ऑब्वियसली जो डॉक्टर हिरियट है उन्होंने उसको फोर्टनाइट के लिए वहां पे रखा था, 14 नाइट्स के लिए रखा था. जब वो पूरा टाइम पीरियड खत्म होता है, शी वॉज एक्चुअली होपिंग टू गेट अ कॉल फ्रॉम डॉक्टर हिरियट एंड अनाउंसिंग हर और इन्फॉर्मिंग हर कि आपका जो डॉग है वो बिल्कुल ठीक है. तो उसके बाद क्या होता है वो हम देखते हैं. James called Mrs. Pumphrey and gave her the good news. Within minutes, she arrived at the clinic. तो जब जेम्स ने ये बताया कि आपका डॉग परफेक्टली फाइन है, जो मिसेस पंफ्रे हैं, she reached the clinic within a few minutes with her in her black gleaming car, and there was a marked change in Tricky now. No longer was he a fat, bloated animal. तो जो मिसेस पंफ्रे हैं उन्हें बोला जाता है कि मैम आप मत आइए, आई एम गोइंग टू ब्रिंग योर डॉग. एंड जो डॉक्टर हिरियट है वो अंदर जाते हैं डॉग ट्रिकी को लेने. तो ही फाइंड्स दैट जो ट्रिकी है वो वहां पे बाकी के डॉग्स के साथ खेल रहा था एंड अभी वो काफी मस्कुलर डॉग हो चुका था. तो वो बता रहे हैं कि जो ट्रिकी है उसके अंदर एक बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिला था. ही वॉज नो लॉन्गर अ फैट एंड अ ब्लॉटेड एनिमल. नाउ ही वॉज अजाइल, ही वॉज वेरी क्विक, ही वॉज वेरी बहुत ही ज्यादा एक मतलब बहुत क्विक एनिमल बन चुका था एंड वेल मसल्ड एंड केप्ट अप वेल विद जेम्स डॉग्स. तो वो बाकी के डॉग्स के साथ स्पीड मैचअप कर पा रहा था. एक बहुत ही लेथ, एक बहुत ही एनर्जेटिक, एक बहुत ही अजाइल डॉग बन चुका था. ठीक है,
जेम्स कैरिड ट्रिकी बैक टू मिसेस पम्फ्रेस कार, और जो जेम्स हैं वो ट्रिकी को ले आते हैं अपने साथ टू मिसेस पम्फ्रेस कार. ओके, नाउ ट्रिकीज क्योर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. अब जो मिसेस पम्फ्रे हैं, अकॉर्डिंग टू हर डॉग वॉज वेरी वेरी इल, एंड अकॉर्डिंग टू हर the only treatment that can cure Tricky was a surgery, because वो बहुत ही बुरी कंडीशन में था. उन्हें नहीं लगता था कि कोई भी सिंपल मेडिसिनल ट्रीटमेंट उसे ठीक कर सकता है या कोई भी डाइट उसे ठीक कर सकती है. ठीक है, तो जब ट्रिकी को उनके पास लाया जाता है, ट्रिकी बिकॉज अपने मिस्ट्रेस को बहुत टाइम से नहीं देखा होता है, वो उनके ऊपर जंप कर जाता है एंड ही स्टार्टेड लिकिंग हर फेस. ठीक है, जो डॉक्टर हिरियट हैं उनके हिसाब से ट्रिकी अब एकदम परफेक्टली फाइन है, ही इज ऑल रेडी टू गो होम. जो मिसेस पम्फ्रे हैं, व्हेन शी वाज अबाउट टू लीव द क्लिनिक, शी हैड टीयर्स इन हर आईज. ठीक है, एंड शी क्लैस्प हर हैंड इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर हिरियट एंड शी सेज, डॉक्टर, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द सर्जरी दैट यू परफॉर्म्ड, इट इज द ट्रायम्फ ऑफ योर सर्जरी. ठीक है, अब देख लेते हैं अपन इसके अंदर. The minute Tricky saw his owner, he jumped out of James' arms and rushed at Mrs. Pumphrey. तो जैसे ही वो अपनी मिस्ट्रेस को देखता है, वो जंप करता है और वो उनकी गोद में चला जाता है. ठीक है, She tried to defend herself as Tricky barked and licked her face. तो जैसे कि हम सब जानते हैं, जब डॉग्स बहुत टाइम बाद अपने मास्टर्स को देखते हैं, they just crawl up on you and they just lick your face. So the same thing was happening with Tricky and Mrs. Pumphrey. Mrs. Pumphrey, with tearful eyes, thanked James. She believed that it was triumph of surgery. ठीक है, वो she had tears in her eyes and she was actually grateful to Dr. Heriot, because according to her, this was just because of the triumph of this was just because of the surgery which was performed on Tricky, and it is the victory of that surgery that her dog has transformed to such a lithe and energetic animal. Okay, so this was all about the brief explanation of the chapter, and if you know the points, if you know what has happened in these points, you will be able to write the answers. Okay, चलिए अब हम देख लेते हैं NCERT questions के solutions देख लेते हैं. Okay. Okay, before we go to the NCERT questions, or before we see the answers of the NCERT questions, let's see the main characters in the story. The main characters in the story are Mrs. Pumphrey, James Heriot and Tricky. ठीक है, तो हम पहले मिसेस पम्फ्रे के कुछ कैरेक्टर स्केच के बारे में बात कर लेते हैं. She was affectionate. Definitely she was an affectionate mistress, because she was very attached to her dog and she used to treat her dog like her own baby, right? तो देख लेते हैं अपन. Mrs. Pumphrey was very attached to Tricky. She fed him everything and was concerned about his deteriorating health. ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा अटैच थी अपने डॉग्स के साथ, उसको बहुत ज्यादा प्यार करती थी, एंड शी यूज्ड टू फीड हिम विद एवरीथिंग, एंड she was impractical. Yes, दो उनके intentions बहुत clear थे, दो उनके intentions में कोई गलत उनका कोई गलत intention नहीं था. वो because of उनका जो love था towards Tricky, वो उस वजह से उसे खिलाती थी, पिलाती थी. But yeah, that was actually impractical, क्योंकि आप किसी person या किसी animal को एक्सेसिवली अगर आप उसको फीड कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसके डिटोरिएटिंग हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं. ठीक है, तो हम देख लेते हैं. Although her intentions were pure, Mrs. Pumphrey over pampered Tricky to a point that Tricky's condition worsened. ठीक है, वो इतना ज्यादा उसको ओवर पैम्पर कर देती हैं, इतना ज्यादा ओवरफेड कर देती हैं कि उसकी वजह से उसकी जो हेल्थ है वो और डिटोरिएट हो जाती है और वर्स हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट, इग्नोरेंट. अब मिसेस पम्फ्रे जो है वो इतना ज्यादा अफेक्शनेट थी ट्रिकी को लेकर कि वो बहुत इग्नोरेंट हो जाती हैं. लाइक शी इग्नोर्स द फैक्ट कि एक एनिमल, एक डॉग को क्या खिलाया जाता है या क्या नहीं खिलाया जाता है. ठीक है, तो देख लेते हैं अपन. Although Mrs. Pumphrey was extremely affectionate towards Tricky, she was blissfully unaware of his food requirement and therefore his deteriorating
हेल्थ। तो एक एनिमल को क्या खिलाना है, कितना खिलाना है, वो उस चीज से इग्नोरेंट हो जाती है, एंड दैट हैपेंस टू बी द कॉज ऑफ हिज डिटोरिएटिंग हेल्थ। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। Next we have James Herriot. Now the first quality of James Herriot, or first character sketch point, is that he was a competent doctor. बिल्कुल, he was a capable doctor. Why? Because it was very very difficult to treat Tricky, है ना, but वो जानते थे कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो क्या होता है, knowing that it will be difficult to treat Tricky while being spoiled at home, he chose an alternate method of treating Tricky in his clinic. तो उन्हें पता था कि घर पे रहने पे तो ट्रिकी का ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो मिसेस पंफ्रे हैं उनका ओवर पैम्परिंग, ओवर फीडिंग बंद नहीं होने वाला है, एंड ड्यू टू दैट उसकी कंडीशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, ठीक है। सो यूजिंग his wits, using his intelligence, he tries to convince Mrs. Pumphrey. वो मिसेस पंफ्रे को जैसे तैसे करके मना लेते हैं एंड ट्रिकी को अपने साथ ले जाते हैं टू हिज क्लिनिक, जहाँ पे उसकी जो ट्रीटमेंट है that started and Tricky's health improved, ठीक है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल, डेफिनेटली प्रैक्टिकल तो वो थे, क्योंकि उन्होंने ट्रिकी का जो ट्रीटमेंट किया, इट वाज नॉट मेयर ऑन द बेसिस ऑफ द मेडिसिन्स, इट वाज जस्ट द प्रॉपर डाइट एंड द एक्सरसाइज, ठीक है। तो देख लेते हैं अपन। James does not give up any medicines to Tricky and treats him right. He performs surgery without actually performing it, ठीक है ना। उसकी सर्जरी बिना सर्जरी करे गई, परफॉर्म करी, है ना। इसका क्या मतलब है कि कहने को सर्जरी लोगों के लिए थी, पर सर्जरी नहीं थी, क्योंकि उसका जो हेल्थ इंप्रूवमेंट था, इट वाज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द डाइट एंड द वाटर इनटेक एंड द एक्सरसाइज, ठीक है। नेक्स्ट कंपैशनेट जो सिंपैथाइज कर जाते हैं ना, उन्हें पता था कि कैसे ट्रिकी के साथ ट्रीट करना है, कैसे मिसेस पंफ्रे को ट्रीट करना है, राइट। सो जेम्स इज अ कंपैशनेट डॉक्टर एंड यूजेस हिज काइंडनेस इन अबंडेंस इन ट्रीटिंग ट्रिकी। तो जो वो अपना सिंपैथेटिक बिहेवियर है, सिंपैथेटिक फीलिंग है, उसे बहुत राइटली यूज करते हैं, एंड वो अपनी काइंडनेस जो है उससे ट्रिकी को ट्रीट करते हैं, ठीक है। ट्रिकी वॉज अ स्पॉइल्ड डॉग, बट विद कंपैशन एंड काइंडनेस जेम्स क्योर्स ट्रिकी। तो वो अपने काइंडनेस के साथ, अपने कंपैशन के साथ ट्रिकी को ट्रीट करते हैं एंड मेक्स हिम अ हेल्दी डॉग अगेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ट्रिकी जो है बिल्कुल ग्रीडी तो वो था ही। वी रेड दैट द ओनली फॉल्ट ऑफ ट्रिकी behind his illness was his greed, है ना। तो Tricky is a small dog who is greedy for food and was indulged in eating more than he needed. तो जो भी उसके dietary demands थे एक दिन के, उससे ज्यादा वो खा लेता था, because he has never learned to say no to any food items, ठीक है। Next is adaptive Tricky जो है, पहले इनिशियल डेज में मे बी ही वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द अदर डॉग्स, बट लेटर ऑन ही मिंगल्ड विद द अदर डॉग्स, वो उनके साथ खेलने लगा था, एनवायरमेंट के साथ अपने आप को अडेप्ट करने लगा था, एंड दैट इज व्हाई ही वाज एबल टू इम्प्रूव हिज कंडीशन, ठीक है। तो देख लेते हैं अपन। ट्रिकी डिड प्ले विद द अदर डॉग्स एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ रिकवर फास्टर by following James advice, ठीक है। तो जैसा जैसा ट्रिकी को लाइक जेम्स के थ्रू ट्रीट किया जा रहा था, he was adapting to that, he was responding accordingly, ठीक है। he responded well to the treatment and became an active dog. तो जो भी ट्रीटमेंट उसे दिया जा रहा था, he was taking it in a positive way, वो उस पे अडेप्ट कर रहा था अपनी बॉडी को, and therefore he transforms himself to a lithe dog, ठीक है। Okay, now what do you understand from the story? What message do you get from the story? The first one is that excessive of everything is bad. Definitely किसी भी चीज का limit cross होना is always bad for any person or any animal or any person, ठीक है। तो अगर हम इसको रियल लाइफ से रिलेट करें, जो पेरेंट्स होते हैं दे शुड नॉट बी इंडल्जेंट। मतलब इंडल्जेंट इज लाइक आप किसी भी पर्सन को अपने विश के अकॉर्डिंग करने देते हैं, खाने देते हैं, कुछ भी जो भी उनके विशेस एंड डिजायर्स होते हैं, यू जस्ट गो ऑन विद दैट। आप उसको आप उसको
इंटरप्ट नहीं करते, आप उन्हें समझाते नहीं हैं, आप उनके साथ बच्चों लाइक पेरेंट्स क्या होते हैं अपने बच्चों के विशेस एंड डिजायर्स के साथ चलते जाते हैं, वेदर इट्स लॉजिकल वेदर इट्स इलॉजिकल, दे ऑलवेज गो विद द डिमांड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, राइट? तो जो पेरेंट्स है दे शुड नॉट बी इंडल्जेंट बिकॉज दैट मे हार्म देयर चिल्ड्रन। बच्चों का जो बेटरमेंट है वो पेरेंट्स ज्यादा समझते हैं, सो दे शुड नॉट बी इंडल्जेंट बिकॉज दैट मे हार्म देयर चिल्ड्रन, ठीक है? ओवर पैम्परिंग में हार्म नॉट ओनली दी चिल्ड्रन बट ऑल्सो दी एनिमल्स। ओवर पैम्परिंग हर किसी के लिए खराब है, हर किसी के लिए हार्मफुल है, बी इट बी द चिल्ड्रन, बी इट बी दी एनिमल्स। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस। द फर्स्ट वन इज द फर्स्ट question is from page number 1, read and find out, and the question says why is Mrs. Pumphrey worried about Tricky? ठीक है, मिसेस पम्फ्रे जो है वो ट्रिकी के लिए वर्रिड क्यों है? सो ट्रिकी के लिए वो वर्रिड इसलिए थी बिकॉज उनका डॉग अनवेल था, ही वॉज रिफ्यूजिंग टू ईट फूड, है ना, वो रिफ्यूज कर रहा था खाना खाना, उसको बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग हो रहा था, वो काफी लथार्जिक होता जा रहा था, ठीक है? सो लेट्स सी, Mrs. Pumphrey is worried about Tricky because he is unwell. उसकी तबीयत खराब है, वो unwell है, ठीक है? He has refused to eat food and had bouts of vomiting. उसने खाना खाने से मना कर दिया, even his favorite food, then he had bouts of vomiting. She feels that he is suffering from a serious health issue such as malnutrition. और उन्हें ऐसा लगा उनका जो डॉग है he is suffering from malnutrition and that is why वो उसको और खिलाती थी, है ना, in between उसको bowl of Horlicks, cod liver oil ये सब देती थी, ठीक है? चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। What does she do to help him? Is she wise in this? अब ट्रिकी बीमार है, ये तो समझ में आता है। अब मिसेस पम्फ्रे की तरफ से क्या एफर्ट्स थे उसको सही करने में? क्या उन्होंने सिचुएशन को सुधारा और शी मेड इट मोर वर्स, ठीक है? क्या, और अगर ऐसा हुआ तो was she wise in it? Let's see. Mrs. Pumphrey starts giving him extra snacks like malt, cod liver oil, Horlicks apart from his main meals to improve his condition. तो मिसेस पम्फ्रे के हिसाब से वो ट्रिकी की सिचुएशन को और अच्छा करने के लिए, उसकी हेल्थ को और अच्छा करने के लिए शी स्टार्टेड गिविंग हिम सम एक्स्ट्रा फूड आइटम्स इन बिटवीन हिज रेगुलर मील्स, ठीक है? She also continues to satisfy his sweet tooth with cream cakes and chocolates. अब क्योंकि उनके डॉग को cream cakes and chocolate बहुत पसंद थे, she started giving him that. Maybe उसकी वजह से वो खाना खा ले, उन्हें ऐसा लगता था, ठीक है? She does not give him any exercise considering his listlessness as well. तो वो उसको एक्सरसाइज नहीं दे रहे थे, प्रॉपर वॉक नहीं दे रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ट्रिकी जो है he is lacking in energy. Listlessness, he is lacking in energy, ठीक है? She is not wise in doing so because overfeeding Tricky is worsening his condition. Obviously, वो wise decision नहीं था उनका ट्रिकी को और एक्स्ट्रा खिलाना, उसको एक्सरसाइज नहीं देना. Why? Because उसकी वजह से ट्रिकी की जो कंडीशन है it was worse, ठीक है? Instead of improving it, कंडीशन और खराब हो गई. It has made him very fat and lazy, and उसी की वजह से he became hugely fat. He became like a bloated sausage, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं अपन। ओके, हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी? तो ये जो आई है वो चैप्टर में जहां जहां पे आपने आई प्रोनाउन देखा होगा, whom does it referring to? This I word is referring to the writer James Herriot, that is the veterinary doctor, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। Is the narrator as rich as Tricky's mistress? तो जो जेम्स हिरियट है क्या वो ट्रिकी की मिस्ट्रेस की तरह रिच थे? ठीक है, अब देखिए अगर वो रिच होते, अगर उन्होंने ये सारे फूड आइटम्स पहले कभी देखे होते अपने लाइफ में या इतना लाविश फूड उन्होंने देखा होता, तो क्या वो ट्रिकी को एज अ परमानेंट गेस्ट रखने के लिए टेम्प्ट होते? बिल्कुल भी नहीं होते, बिकॉज उनके लिए ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल होती, राइट? तो डायरेक्टली तो कहीं मेंशन नहीं है, बट हम इसी के थ्रू ये समझ सकते हैं दैट ही वाज नॉट एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, ठीक है? चलिए देखते हैं अपन। नो, द नरेटर इज नॉट एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस मिसेस पम्फ्रे. We can say so because the narrator seems fascinated by how lavishly Mrs. Pumphrey spends on the well-being and maintenance of her
पेट, ठीक है। तो वो ये बात हम ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी किसी भी पर्सन को अपने डॉग को इतना लैविशली फीड करते हुए, मेंटेन करते हुए नहीं देखा था, ठीक है। He is unusually surprised by the enriching items she sends for Tricky. And जो भी वो enriching items like wine हो गया, brandy हो गया, eggs हो गया, जिस तरीके से वो अपने डॉग के लिए ये सब भेज रही थी, वो बहुत सरप्राइज था इसको देख के, ठीक है। As he cannot afford them for himself. तो ऑब्वियसली वो नहीं खा पाता था पहले ये सब चीजें, बट जब से ट्रिकी उसके पास आया था, he was able to feed himself with the lavish food items and that is why he was tempted to keep Tricky as a permanent guest. तो हम उसी चीज से इसको कन्फर कर पा रहे हैं कि मे बी दिस इज वन ऑफ द रीजन कि हम ये बोल रहे हैं कि he was not as rich as Mrs. Pumphrey, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। How does he treat the dog? तो जेम्स हिरियट ने कैसे उस डॉग को ट्रीट किया वो हम इसके अंदर देखते हैं। अब जिस सिचुएशन में जेम्स हिरियट के पास ट्रिकी आया था, he was very wise in like taking the decision how to cure Tricky, और वो उसे ना फूड आइटम्स का काफी ज्यादा कंट्रोल करते हैं, मतलब देते ही नहीं है फूड आइटम्स, वाटर डाइट पे रखते हैं, बाकी के डॉग्स के साथ वो खेलता है, दैट बिकेम द एक्सरसाइज फॉर ट्रिकी, ठीक है। तो इस तरीके से ही वाज एबल टू ट्रीट ट्रिकी। देख लेते हैं अपन आंसर। James Herriot treats Tricky just like he would treat an overweight and lazy dog, which Tricky is. तो जिस तरीके से वो किसी overweight या किसी lazy dog को treat करता, the same way he treated Tricky, ठीक है। He cuts down his food intake and keeps him under strict observation for initial days at hospital. उन्होंने उसके फूड आइटम का जो डाइट था उसको कट शॉर्ट किया एंड उसको स्ट्रिक्ट like ऑब्जर्वेशन में रखा। He gradually increases Tricky's food and sets him free for physical activities to improve his health. और जैसे जैसे improvement आने लगा, जैसे जैसे ट्रिकी अपने आप को अडेप्ट करने लगा environment में, बाकी के dogs के साथ खेलने लगा, that became the exercise for him to improve his health. ठीक है, चलिए next question देखते हैं। Why is he tempted to keep Tricky on as a permanent guest? ये हमने पहले भी बात करी थी। Because of the food items that Mrs. Pumphrey started sending for Tricky, he was tempted to keep Tricky as his permanent guest. ठीक है, देख लेते हैं अपन। Mr. Herriot is tempted to keep Tricky on as a permanent guest because of the good food and wine he is enjoying in Tricky's name. He does not want to lose the luxurious inflow of fresh eggs, wine and ब्रांडी। तो वो नहीं चाहते थे कि ये जो इनफ्लो हो रहा है चीजों का, ये जो चीजें उनके पास आ रही हैं, लाविश फूड आइटम्स उनके पास आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एग्स, वाइन, ब्रांडी, वो सब कम हो जाए, वो सब खत्म हो जाए। दैट इज व्हाई ही वाज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट, ठीक है। चलिए, Why does Mrs. Pumphrey think the dog's recovery is a triumph of surgery? ठीक है, मिसेस पंफ्रे को ऐसा क्यों लगता है कि जो ये सब हुआ, इट वॉज बिकॉज ऑफ द सर्जरी विच वॉज परफॉर्म्ड ऑन ट्रिकी, ठीक है। अब क्योंकि ट्रिकी की सिचुएशन इतनी खराब थी कि उनके हिसाब से बहुत कम ही चांसेस थे कि ट्रिकी जो है इतना जल्दी रिकवर कर पाएगा, ठीक है। तो जब ट्रिकी इतना अच्छा रिकवर कर जाता है इन जस्ट 14 नाइट्स एंड उसे ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ सम सर्जरी दिस हैज हैपेंड, राइट। तो देखते हैं अपन क्या था एक्चुअली में। Mrs. Pumphrey thinks that Tricky's recovery is a triumph of surgery because his illness was very serious. ठीक है, उसकी बीमारी बहुत serious थी। She was of the opinion that there were very few chances of Tricky to improve and he needed immediate medical attention. तो उनके हिसाब से Tricky के improve होने के chances बहुत कम थे and he actually needed immediate medical attention. That was her opinion. Thus, his revival without any medicinal treatment was a great achievement according to her. That is why ये जो revival था ट्रिकी का वापस से अपने good health में, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा achievement था and she thought her to be the triumph of a surgery. Okay. Next question. What kind of a person do you think the narrator or veterinary surgeon is? Would you say he is tactful as well as full of common sense? ठीक है, तो आपके हिसाब से जो डॉक्टर हिरियट हैं वो कैसे पर्सन है?
वेटरनरी सर्जन तो वो अच्छे हैं ही, उसके साथ साथ डू यू फाइंड हिम टू बी अ टैक्टफुल पर्सन एंड अ पर्सन हु हैज अ लॉट ऑफ कॉमन सेंस? ओके, लेट्स सी. देखिए, द नरेटर अ वेटरनरी सर्जन इज केपेबल एंड वाइज डॉक्टर. ये तो हम सब जानते हैं वो कितने केपेबल हैं, कितने वाइस हैं, बिकॉज उनका ही वो डिसीजन था कि ट्रिकी को वो अपने साथ हॉस्पिटल ले जाएंगे, वहां पे उसको एक अंडर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उसको एक प्रॉपर डाइट देंगे. उसी की वजह से ही ट्रिकी जो है वो एक वापस से एक एनर्जेटिक डॉग बन पाया था. तो ये हम सब जानते हैं वो बहुत ही वाइस और बहुत ही केपेबल डॉक्टर थे. ठीक है, he handles Tricky properly which shows that he is sincere about his प्रोफेशन. तो उन्होंने अननेसेसरी ट्रिकी के ऊपर कोई सर्जरी परफॉर्म नहीं की, उन्होंने अननेसेसरी ट्रिकी को कोई फालतू मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया. ही वॉज वेरी वाइज इन हैंडलिंग हिम, राइट? Next, he does not operate upon the dog unnecessarily and cures him by altering his diet, making some modifications in the diet. ठीक है, तो उन्होंने ट्रिकी को जो है unnecessarily सर्जरी नहीं किया, बस उसके डाइट में कुछ ऑल्टरेशंस किए, कुछ चेंजेस किए, उसके एक्टिविटीज में कोई चेंजेस किए. एंड ऑन द अदर हैंड ही वाज अ टैक्टफुल पर्सन. टैक्टफुल इज लाइक आप किसी बात को ऐसे कन्वे करते हैं कि वो हर्ट भी ना करें एंड सामने वाले को बहुत बुरा भी ना लगे और वो उसको एक राइट तरीके से ले ले. ठीक है, तो जो ट्रिकी हैं उनके लिए मतलब ट्रिकी की मिस्ट्रेस को ये बोल पाना कि आपके डॉग को एक ट्रीटमेंट की जरूरत है, और इस तरीके से बोल पाना कि जो मिसेस पंफ्रे है वो उससे अफेक्ट भी ना हो, इट वाज अ वेरी ट्रिकी थिंग टू डू, राइट? तो वो इतने टैक्टफुल थे कि उन्होंने इस तरीके से मिसेस पंफ्रे को कन्विंस किया दैट जो ट्रिकी है ही नीडेड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अ सर्जरी. एंड his decision to inform Mrs. Pumphrey to collect Tricky supports his sensibilities even though he was tempted to keep Tricky as a permanent guest. तो सर्जरी के लिए ले जाने का बोलना, उसके बाद ट्रिकी को अपने घर लाइक अपने क्लिनिक में एज अ परमानेंट गेस्ट रखना, एंड देन फिर वापस ही केम बैक टू दैट लाइक दैट मूड कि नहीं ये गलत हो जाएगा बिकॉज मिसेस पंफ्रे जो है वो ट्रिकी के लिए सफर कर रही होंगी. ये सारी चीजों में अपना रोल प्ले करना, ये सब ये शो करता है कि वो जो डॉग है वो कितने केपेबल थे, कितने वाइस थे, कितने टैक्टफुल थे. ठीक है, चलिए देखते हैं अपन आगे. डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? तो बिल्कुल हमें ये पता है कि जब ट्रिकी को लास्ट में घर ले जाने के लिए लाया गया था, हाउ ही जम्प्ड ऑन हिज मिस्ट्रेस, राइट? तो वो प्रूव करता है कि वो कितना खुश था. अब घर जाने के बाद क्या आपको लगता है कि क्या वापस से ट्रिकी को वही सेम ओवर फीडिंग, ओवर पैम्परिंग दी गई होगी, या मे बी मिसेस पंफ्रे ने इस पूरे इंसिडेंट से एक लेसन लर्न किया होगा एंड कट शॉर्ट किया होगा ट्रिकी का डाइट एंड ऑल? देखते हैं अपन. Tricky was happy to go back home as he really loved his mistress and the comfort of his lavish life. He didn't have any friends at home like in the hospital, but he seemed equally excited at the sight of Mrs. Pumphrey. तो दो जो ट्रिकी है उसको यहाँ पे फ्रेंड्स मिल गए थे, उनके साथ वो खेलता था, उनके साथ एंजॉय करता था, बट हमने ये भी देखा था कि वो अपनी मिस्ट्रेस को देख के कैसे एक लीप ले लेता है उनके लैप पे. ठीक है, I think that Mrs. Pumphrey will now be careful about Tricky's diet and health. तो like we are hoping कि ऐसा ही हुआ हो कि जो मिसेस पंफ्रे है उन्होंने इस पूरे एपिसोड से एक लेसन सीखा हो और ट्रिकी के डाइट पे कंट्रोल किया हो. ठीक है, she may also give him exercise daily as prescribed by the vet earlier. And we are also hoping कि उन्होंने ट्रिकी के लाइफस्टाइल में एक एक्सरसाइज का जो पूरा प्रोसेस है उसको इंक्लूड किया होगा एज ही वाज प्रिस्क्राइब्ड बाय द वेटरनरी डॉक्टर हिरियट. ठीक है, नेक्स्ट, डू यू थिंक इट इज अ रियल लाइफ एपिसोड और मेयर फिक्शन और इज इट अ मिक्सचर ऑफ बोथ? तो आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा चैप्टर है क्या ये एक रियल स्टोरी है, क्या ये फिक्शनल स्टोरी है, क्या ये मिक्सचर ऑफ दोनों, लाइक इज इट अ मिक्सचर ऑफ बोथ, इज इट अ रियल एंड फिक्शनल बोथ? ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं. देखिए, जो स्टोरी है इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ, राइट? ये स्टोरी दोनों का मिक्सचर हमें लगती है. ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए किसी भी रिच
मास्टर या मिस्ट्रेस के लिए अपने डॉग को ओवर फेड करना, ओवर पैम्पर करना बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। सो इट मे बी पॉसिबल फॉर रिच पर्सन्स टू ओवरफीड देयर पेट्स ड्यू टू लव. It is not unusual for them to maintain a vast wardrobe for them either. और ऐसा भी पॉसिबल है कि वो अपने डॉग्स के लिए एक प्रॉपर वार्डरोब मेंटेन करते हैं. डॉग्स के ड्रेसेस जो होते हैं, कोट्स जो होते हैं, वो सब उन्होंने मेंटेन किया है. बिल्कुल ये भी पॉसिबल हो सकता है. But it is unlikely for a veterinary doctor to go out of the way and lie in order to save an animal. It is also unusual for anyone to consume food which is given in the name of a pet's health. हाँ, एक डॉक्टर के लिए किसी एनिमल के नाम पे दिया गया फूड कंज्यूम करना वो एक थोड़ा सा वियर्ड है, थोड़ा सा अनयूजुअल है. इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि जो ये चैप्टर है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अ फिक्शन एंड अ रियल लाइफ एपिसोड. ठीक है. नेक्स्ट, this episode describes the silly behavior of a rich woman who is foolishly indulgent, perhaps because she is lonely. Do you think such people are merely silly or can their actions cause harm to others? तो हमें ये बताना है कि जो ये हमने चैप्टर पढ़ा है वो एक विमेन के सिली बिहेवियर को बताता है, जो कि अपने डॉग के लव में बहुत ज्यादा स्वे हो जाती है और इतनी इंडल्जेंट हो जाती है. वो अपने डॉग को जो उसे चाहिए होता है वो उसे दे देती हैं विदाउट सेइंग नो टू एनीथिंग, राइट. और क्या वो इसीलिए ऐसा करती हैं बिकॉज शी इज ऑल अलोन? एंड डू यू थिंक ये जो ऐसे लोग होते हैं वो सिली होते हैं एंड उनके जो एक्शंस हैं वो दूसरों को हार्म पहुंचा सकते हैं? ठीक है, तो देखते हैं अपन. Mrs. Pumphrey's action had a harmful reaction on Tricky's health. तो मिसेस पम्फ्रे के ये जो एक्शंस थे उससे ट्रिकी की हेल्थ पे एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. ठीक है. शी वॉज ओवर पेरेंटिंग एंड ओवर फीडिंग. वो ट्रिकी को ओवर पैम्पर कर रही थी, ओवर फीड कर रही थी इन द नेम ऑफ लव. ठीक है. दिस वर्सेंड हिज कंडीशन टू एन एक्सटेंट दैट ही हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड. एंड ये चीज से उसकी सिचुएशन इतनी खराब हो जाती कि उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता है. पीपल लाइक मिसेस पम्फ्रे आर नॉट जस्ट मेयरली सिली बट देयर एक्शंस कैन डेफिनेटली हैव डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर अदर्स. ठीक है. तो ये मिसेस पम्फ्रे जैसे जो लोग होते हैं उनके ये जो एक्शंस होते हैं लोगों को ओवर फीड, ओवर पैम्पर करने के, इसकी वजह से ना केवल उनके हेल्थ पे एक डिटोरिएटिंग इम्पैक्ट आता है बट कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस एज वेल. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन. डू यू थिंक देयर आर ऑल्सो पेरेंट्स लाइक मिसेस पम्फ्रे? क्या आपको लगता है रियल लाइफ में ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जो अपने बच्चों को ओवर फीड, ओवर पेम्पर करते हैं या इंडल्जेंट हो जाते हैं? दे डू नॉट से नो टू एनी डिमांड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन. क्या आपको ऐसा लगता है? देखते हैं. यस, देयर आर सम पेरेंट्स लाइक मिसेस पम्फ्रे हु स्पॉइल देयर चिल्ड्रन बाय पैम्परिंग देम. तो बहुत ज्यादा पैम्पर करने से कई सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को स्पॉइल कर देते हैं. दे ओवरफीड देयर चिल्ड्रन. यहां पर हम बच्चों की ही बात कर रहे हैं तो हम अभी इसको इग्नोर करते हैं. तो वो अपने बच्चों को ओवरफीड कर देते हैं और अगर उनके पास पेट्स हैं जिनको वो अपने बेबीज की तरह रखते हैं तो वो अपने पेट्स को ओवरफेड कर देते हैं डिस्पाइट बीइंग अवेयर ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन देयर हेल्थ. एंड दे इग्नोर द फैक्ट कि ये जो उनका ओवर फीडिंग है, ओवर पैम्परिंग है, इट कैन हैव अ सीरियस या हजार्डियस कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है. ठीक है. Parents like Mrs. Pumphrey should maintain a healthy lifestyle of their family and pets. तो मिसेस पम्फ्रे जैसे जो लोग होते हैं उनको एक चेक रखना चाहिए कि कितना देना है बच्चों को, कितना देना है पेट्स को, सो दैट उनका जो लाइफस्टाइल है वो हेल्दी हो पाए और वो एक गुड एंड हेल्दी लाइफ मेंटेन कर पाए. ठीक है. ओके, नेक्स्ट. What would you have done if you were? अब आपको दिया हुआ है कि कुछ सिचुएशंस हैं, अगर आप वहां पर होते तो आप क्या करते. ठीक है. So what would you have done if you were a member of the staff in Mrs. Pumphrey's household? अगर आप मिसेस पम्फ्रे के घर पे जो काम करते हैं उनमें से एक होते तो आपका क्या रिएक्शन होता? How would you have reacted? How would you have helped Mrs. Pumphrey? Then
अ नेबर, अगर आप उनके नेबर होते तो आप क्या करते? what would your life have been like in general? ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं अगर हम मिसेस पंफ्रे के घर पे मेंबर होते एज अ हाउस होल्ड हेल्प, ठीक है, तो हम क्या करते? If I were a member of the staff in her household, I would have not followed Mrs. Pumphrey's command to feed Tricky blindly. तो अगर हम उनके घर में हाउस होल्ड हेल्पर्स होते तो हम उनके कमांड्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, हम जो भी डॉक्टर बोलता हम उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, ना हम मिसेस पंफ्रे को उसे डॉग को ओवरफेड करने देते, ठीक है। तो if I were a member of the staff in her household, I would have not followed Mrs. Pumphrey's command to feed Tricky blindly. हम blindly उसे feed नहीं करते. I would have fed him according to the vet's advice. और वेटेनरी डॉक्टर ने जो भी एडवाइस दिया था हम उसके हिसाब से उसे फीड करते. I would have also skipped sending the unnecessary stuff like toys, cushions, etc. to the hospital. और ये सब जो उसकी चीजें थी, toys, cushions, bowls and all, वो भी हम नहीं भेजते, ठीक है। Now, if I were Mrs. Pumphrey's neighbor, अब सेकंड है अगर मैं उनका नेबर होता या होती तो मैं क्या करती या करता? I would have advised her to consult a vet and follow his advice strictly, keeping in mind Tricky's deteriorating health. तो अगर मैं नेबर होता तो मैं पहले उन्हें बोलता कि like immediately you should consult a veterinary doctor and you should also follow the advice which is given to you by the doctor, ठीक है। Tricky's deteriorating health, I would have also been supportive in their hard time when Tricky was hospitalized. तो जब Tricky hospitalized था, जब मिसेस पंफ्रे को इमोशनल सपोर्ट चाहिए था, तब मैं उनके साथ होता या होती और उन्हें हेल्प करती, ठीक है, या करता, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। What would you have done if you were in the narrator's place? अब आप क्या करते अगर आप नरेटर के प्लेस पे होते, अगर आप वेटेनरी सर्जन होते तो आप ट्रिकी को कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर हमें ट्रिकी को क्योर करना है और हम डॉक्टर हिरियट की जगह होते तो वी वुड हैव डन द सेम थिंग, वी वुड हैव ट्रीटेड ट्रिकी विद द सेम कंपैशन, सेम सेंसिबिलिटी एंड ऑल, ठीक है। तो देखते हैं अपन आंसर। If I were in the narrator's place, I would have treated Tricky with a similar amount of compassion and love. तो हम भी Tricky को उतने ही compassion से, उतने ही love से treat करते. I would have been equally caring as Mr. James Heriot towards Tricky. और जितना वो caring थे Tricky के लिए, उतने ही हम careful होते, उतने ही हम caring होते towards Tricky. I would have just been a little more strict while advising Mrs. Pumphrey to put Tricky on a strict diet, knowing her way of showing love. हाँ, ये हो सकता है कि मेरा जो एडवाइस होता मिसेस पंफ्रे के लिए वो और स्टर्न होता, वो और फर्म एडवाइस होता, क्योंकि जो ट्रिकी है वो इतनी बुरी सिचुएशन में था तो कहीं ना कहीं मिसेस पंफ्रे हैज अ रोल टू प्ले इन दैट। तो मेरा जो एडवाइस है वो शायद थोड़ा सा लिटिल मोर स्ट्रिक्ट होता, लिटिल मोर स्टर्न होता, ताकि वो इमीडिएटली ये जो मेरा एडवाइस है ये इम्प्लीमेंटेशन में आ जाता, ठीक है। I would have also not consumed Tricky's share of eggs, wine and brandy sent by Mrs. Pumphrey. हाँ, ये हो सकता है, ये मैं डॉक्टर हिरियट की जगह पे अगर होता या होती तो मैं ट्रिकी का जो शेयर ऑफ फूड है वो कंज्यूम नहीं करता या करती, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर एंड द एनसीईआरटी क्वेश्चंस. We'll be bringing you with more NCERT chapter solutions and answers in our next videos. Thank you.